डाटा मैनेजमेंट इज वन थिंग ना जिसमें मोस्ट ऑफ द एडिटर्स को डाटा मैनेजमेंट का नहीं पता होगा. द मोमेंट यू जॉइन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड यू डोंट नो डाटा मैनेजमेंट, यू आर डन. You will in the longer run lose a bunch of data, a bunch of clients, and you would then realize कि यार इस बंदे की बात ना एक एक पॉइंट सुनना चाहिए था. Building this folder structure it took me around 3 years. अगर तुम में से कोई भी है जो assets का एक फोल्डर बनाता है और उसमें अपने साउंड इफेक्ट्स, अपने PNG सारा कुछ फेंक देता है, you guys are killing yourself. जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये है ना, आपको कोई इंटरनेट पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगे दिखाएगा नहीं. This was everything about advanced data management by Editing School. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. So guys, we're gonna start our meeting. आज की meeting के अंदर we're going quite in depth into data management, and by that I mean advanced data management. Now, data management is one thing ना जिसमें most of the editors, specifically if you're just an editor who is a little bit modern editor, you're not someone who has been editing from 2015, 2016. ज़्यादातर लोगों को डाटा मैनेजमेंट का नहीं पता होगा बिकॉज यू मोस्टली एडिट ऑन शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट क्योंकि बूम उसका आया हुआ था, राइट? बट here's the thing. Data management is that one thing that the moment you join a big organization, आप किसी भी बड़े client को लेते हो ना, and you don't know data management, you're done. It's dead. You'd be like, why did I not understand data management before? And specifically, अगर आप काम कर रहे हो on projects that are somewhat like very big. Like if you're working on a project of Editing School and you don't know data management, I'm sorry to say you might not work with us. Because हमारी एक मास्टर क्लास, एवरेज मास्टर क्लास, द एडिटिंग मास्टर क्लास जो हमारी पूरी एडिटिंग मास्टर क्लास है, आपने ज़्यादातर लोगों ने ली हुई है, दैट मास्टर क्लास अलोन इज मोर देन 1 terabyte. And the color grading master class that I'm making right now is more than 2 terabytes. Imagine you have that big data size and you don't do data management. It's crazy. It's wild. But खैर इस पे बात करने से पहले I'm gonna talk about a few other things and then we're gonna jump into this specific topic. First of all, why should you get my advice on data management? सैफ, ठीक है तुमने हमें एडिटिंग सिखाई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बट डाटा मैनेजमेंट में हम तुम्हारी एडवाइस क्यों लें? What is so special about you? Let me give you a little bit of breakdown as to why you should learn data management from me, and hopefully you will get a few bit of chunks from here. ठीक है? All right. First reason. This is a bunch of things that I'm speaking. इनमें से कुछ चीज़ें शायद आपको गूगल करनी पड़े, but hopefully you'll get a good idea. I have 5+ years of post-production का experience. Not just video editing. Video editing is one thing. ठीक है? Motion graphics is one thing. Color is one thing. I have a complete post-production का 5+ years का experience. I have worked, I have managed projects of companies that are extremely big. By that, आपको यहाँ पे एक second point नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने लिखा हुआ है to CC clients from USA. What does that mean? So there is a term, you can just go and Google it. अभी Google ना करना, अभी इसको समझो, बाद में कर लेना. Which is called 2 club clients. So 2 club clients वो होते हैं that have made more than $1 million on ClickFunnels alone. So I have worked on multiple 2 club clients के projects, and you know, if somebody is doing that big, they have a bunch of projects, which also means a lot of data management goes into it. So I've worked on that. Editing masterclass के अंदर आपने already 2 club agency के ऊपर काम किया हुआ है, जो भी editing masterclass जिन लोगों ने शुरू कर दी है. So you already know that. Third reason, I run Editing School, which is the biggest video editors का देसी school out there, which also means we have extremely big data files, and पूरी editing masterclass मैंने खुद edit की हुई थी, which is more than 1 terabyte का उसका size, जो कि मैं नीचे लिखा हुआ है average size जिस पे हम काम करते हैं, that is more than 1 terabyte. So a lot of data that we work on, and you're gonna get a bunch of knowledge. मज़े की बात ये है, जितनी मैं knowledge आपको दूंगा यहाँ पे, this complete knowledge you can apply even if you're working on short form content and if you're working with small clients as well. This one thing will save your life, and by that I mean all of the project settings, the asset settings, and everything in between of that. Everything will be so much halwa for you if you just copy paste what I'm teaching. You don't have to do anything fancy. Sirf copy paste karo mujhe and your life will be easy. Okay. Why is data management so important? क्या ज़रूरत है मैं आराम से जाके कलर ग्रेडिंग सीखूँ, मैं मोशन ग्राफिक्स सीखूँ, मैं एडिटिंग करूँ? क्यों है डाटा मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट कि मैं पूरी की पूरी क्लास इस पे लगा दूँ? Why is that? Let me give you a context. जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट की थी ना, पहले 6 महीने के अंदर आई वॉज नॉट लुकिंग एट डाटा मैनेजमेंट. इट वॉज लाइक ओके, बस ठीक है, डाटा मैनेजमेंट है, व्हाटएवर. अचानक से क्या होता है, एक दिन देयर वॉज अ क्लाइंट जो यूके की क्लाइंट थी. आप लोगों ने काफ़ी एडिटिंग स्कूल में नाम सुना हुआ, इसका लॉरेन की मैं बात कर रहा हूँ.
सो लॉरेंस सेज टू मी दैट सैफ, वो जो हमने 6 महीने पहले प्रोजेक्ट एडिट किया था, कैन यू गो बैक एंड गिव मी सम फाइल्स ऑफ इट? बूम, आई एम लाइक ओके फाइन, कितना प्रॉब्लम है? मैं गया फोल्डर्स के अंदर एंड आई कैन नॉट फाइंड दैट फाइल। एंड जब मैं इतने टाइम बाद उस फाइल को मैंने ढूंढ लिया ना, प्रोजेक्ट फाइल को, एवरीथिंग इन इट वाज लाइक डिस्कनेक्टेड। और मुझे पूरा एक दिन लगा था सिर्फ वो चीज़ें सेट करने में। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड दैट हाउ इंपॉर्टेंट डाटा मैनेजमेंट इज। एंड इफ यू डोंट डू इट द राइट वे, इट डजंट मैटर अगर आपके पास बड़े क्लाइंट्स हैं या आपके पास छोटे क्लाइंट्स हैं, इफ यू डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली डू डाटा मैनेजमेंट, you will in the longer run lose a bunch of data, a bunch of clients, and you would then realize कि यार इस बंदे की बात ना एक एक पॉइंट सुनना चाहिए था। सो राइट नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज टू टेक अ पेन, टेक अ पेपर, क्योंकि मैं काफ़ी इन डेप्थ जाके बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताने वाला एक दो फोल्डर बनाओ बात खत्म हो गई, मैं बहुत इन डेप्थ जाने वाला हूँ। सो एक पेन पकड़ लो, एक पेपर पकड़ लो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स तुमने लिखने हैं अगर तुम 2 घंटे की मीटिंग दोबारा से नहीं देखना चाह रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है डाटा मैनेजमेंट। नाउ वन थिंग, before we dive deep into data management and we understand the core of it, there is one thing that I want all of you guys to remember. इसको कहीं पे अपने पास लिख लो, ये चीज़ तुम्हें सारी ज़िंदगी काम आएगी। I think you guys can already see it on the screen. You don't do data management for yourself. This is something जो मैं हमेशा खुद को रिमाइंड करवाता हूँ। एडिटिंग स्कूल में जो भी एडिटर हायर होता है, दिस इज़ वन थिंग जो उस एडिटर के पास कंफर्म होती है, ठीक है, उसको पता होती है। और ये सबसे पहले हम लोग का मेजर फोकस है जिस पे हम बात करते हैं। दैट इज़ यू डोंट डू डाटा मैनेजमेंट फॉर योर सेल्फ, यू डू इट फॉर अदर्स, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर फ्यूचर सेल्फ एज वेल। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि आप डाटा मैनेजमेंट कभी भी अपने लिए नहीं करते। मैं डाटा मैनेजमेंट अगर करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स की, तो मैं सिर्फ इस वजह से नहीं करता कि ओके देयर इज सम डाटा मैनेजमेंट थिंग गोइंग ऑन एंड आई एम डूइंग दैट डाटा। नो, द रीज़न आई डू डाटा मैनेजमेंट इज बिकॉज इंक्लूडिंग, ये एक पॉइंट मैंने रेज किया था, दोबारा से देखना, अदर्स, उसके बाद मैंने लिखा था इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर फ्यूचर सेल्फ। तो मैं 2 रीजंस की वजह से करता हूँ। अगर मेरा फ्यूचर सेल्फ उन चीज़ों को खोलता है, 5 साल बाद उस प्रोजेक्ट को खोलता है, तो मैं उसको उसी तरह नेविगेट कर पाऊँ जैसे मैंने उसको कल छोड़ा था, ऐसा फील हो मुझे। और दूसरी चीज़ होती है, मैं अगलों के लिए करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट अभी कर रहे हो एंड इफ यू आर वर्किंग विद प्रोजेक्ट्स, इस तरह के एडिटिंग स्कूल है, हम लोग की 2 टेराबाइट 1 टेराबाइट का एवरेज प्रोजेक्ट होता है, राइट। सो अगर आप मल्टीपल एडिटर्स के बीच में वो प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपकी डिविजन्स चल रही हैं उन प्रोजेक्ट्स के बीच में, तो आपने वो डाटा किसी और को देना होगा। यू वुड प्रोबेबली यूज समथिंग लाइक दिस SSD, और यू वुड यूज़ NASCA सिस्टम्स जो कि काफ़ी हाई एंड सिस्टम्स होते हैं, बट यू वुड नीड ऑल ऑफ दो सिस्टम्स ताकि सारे एडिटर्स के बीच में ये चीज़ रिलायबली कम्युनिकेट हो पाए। ओके, होपफुली ये चीज़ आपको याद होगी, इसको कहीं पे लिख लो अपने पास, बहुत काम आने वाली है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट। सो सैफ, कितनी टाइप्स है डाटा मैनेजमेंट की? ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर जाके डाटा मैनेज कर देता हूँ, और क्या चाहिए? नो, दैट इज़ not the beginning. The thing starts from on-device data management. Hey जनाब, sorry to pause you before continuing the meeting. मैं आपको एक 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ that would really help you, so don't miss this one out. Number 1, if you're loving these meetings, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, you would love joining editing school. अब मैंने जैसे editing school बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। There is really important thing that you need to understand. First of all, if you are someone who's serious about editing और आप बेस से editing का कोर्स सीखना चाहते हैं, then I teach you all of that in editing school. More importantly, you will be able to join these exact meetings. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, you would be able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one-time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. So on device is that first thing जहाँ पे आप जाके अपनी डिवाइस की मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर करते हो, और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं इनसाइड NLE. NLE का मतलब होता है नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जिसका सिंपली मतलब ये आपका जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, DaVinci, प्रीमियर, फाइनल कट प्रो, नॉन लीनियर सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जो कि आप सिंपली इस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके सैफ, 2 तरह की टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या करें? सबसे पहले हम जाएंगे हमारे ऑन डिवाइस ब्रेकडाउन के ऊपर, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारे पास जो
डिवाइस है, इस वक्त हम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं गए, इस वक्त हम अपने कंप्यूटर के ऊपर हैं। हमने कंप्यूटर के ऊपर किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है, बाय मद्देनज़र आई मीन किन पॉइंट्स पे फोकस रखना है जो कि हमारे ऑन डिवाइस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। 5 चीज़ें हैं, अगेन कहीं पे लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो दोबारा मीटिंग आके देख सकते हो। पहली आती है हमारे पास क्लाइंट स्लैश प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है कि जो आपकी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग है उसके अंदर अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं तो आपने क्लाइंट की बेसिस पे फोल्डर्स को स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है, क्लाइंट्स के नाम के अंदर अब सब कुछ जाके हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, आपके पास एक ही हाई बजट क्लाइंट है जो कि आपको 3-4 हज़ार $5,000 दे रहा है, तो फिर आपने क्लाइंट की प्रोजेक्ट्स को डिविजन्स में रखना होगा। इसको मैं आगे स्क्रीन पे लाइव जाके दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे होती है, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस, ओके। ऑलराइट, सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये होती है कि हमारी रॉ फुटेज हमेशा हमारे रेंडर्ड फोल्डर्स से डिफरेंट हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, रॉ फुटेज और रेंडर्ड फोल्डर्स को साथ जोड़ा हुआ होता है। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, आई विल शेयर यू इन अ सेकंड व्हाई। सो हमारे पास दूसरा आ जाता है रॉ फुटेज। नाउ रॉ फुटेज डज नॉट मीन कि आपकी एप्पल प्रो रेज या आपकी रेड के ऊपर फुटेज शूट हुई हो जाए, या जिस तरह हमारी कुछ फुटेज ब्लैक मैजिक पे शूट हुई होती है एडिटिंग स्कूल की, बिकॉज कोर से वी डू फिल्म मेकिंग एज वेल। इट्स नॉट दैट, इट्स इवन h.264 सिंपल आपके पास फाइल है, उसको भी आप रॉ फुटेज कंसिडर करोगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेंडर्ड फोल्डर्स। नाउ रेंडर्ड फोल्डर्स आर टोटली सेपरेट फ्रॉम रॉ फोल्डर्स, सही है, अलग रखना है आपने। हमारे पास अगला फोल्डर आएगा जो कि आपके सारे फोल्डर्स की कॉम्बिनेशन होगी, दैट इज गोइंग टू बी एसेट्स। एसेट्स बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास आखिरी आता है जो कि होता है प्रॉक्सीज। नाउ ये जो प्रॉक्सीज है इनकी लोकेशन आपको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप दोबारा फोल्डर खोलोगे आप लोगों को हर चीज़ को रीलिंक करना होता है, इसलिए प्रॉक्सीज आर गोइंग टू बी रियली हैंडी व्हेन यू डू दैट। ओके सैफ, थ्योरी समझा दी है, यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई चीज़ की। मुझे ना थोड़ा प्रैक्टिकल इस चीज़ को समझाओ। ये 5 चीज़ें मुझे समझ आ गई हैं, ठीक है, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स ऑल ऑफ दैट, ये रियल लाइफ में कैसे होता है, सही है। ओके, बड़े मज़े से एक्सप्लेन करने लगा। सो हम थोड़ा सा मूव करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चरिंग ऑन डिवाइस वर्क फ्लो। सो यहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड के अंदर आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग अब दिखाने लगा हूँ। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन कर चुके हैं उस चीज़ से। बाय द वे, बिफोर वी मूव टू द डिवाइस वाला सेक्शन, एक चीज़ याद रखना, मैंने आप लोगों को एडिटिंग मास्टर क्लास के अंदर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स दिखाए हुए हैं, राइट। अभी मैं आपको क्लाइंट के फोल्डर्स नहीं दिखा रहा क्योंकि वो ज़्यादातर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले देखे हुए हैं क्लाइंट फोल्डर स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है। अब मैं आपको उससे बड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स थे ना, अल्टीमेटली अदर देन जो हमारे पास फाउंडर के प्रोजेक्ट्स थे, सो FOUNDR, यू कैन जस्ट टाइप इट ऑन गूगल, क्वाइट मैसिव कंपनी इन अमेरिका। जो फाउंडर के प्रोजेक्ट्स थे ना, वो ब्लैक मैजिक के ऊपर वो शूट करते थे, ब्लैक मैजिक 6K पे शूट करते थे वो, और कुछ प्रोजेक्ट्स उनके बिल्कुल रॉ होते थे, वो हमें भेजते थे ड्रॉप बॉक्स के थ्रू। सो यूजुअली एक फाइल का साइज़ 100-200 GB होता था, जो एक वीडियो में एडिट कर रहा हूँ उसका 100-200 GB फाइल का साइज़ होता था, राइट। लेकिन उसके अलावा जितने ज़्यादा क्लाइंट के बाकी प्रोजेक्ट होते थे वो अराउंड बॉल पार्क में फॉल करते थे, मे बी 100 MB, 500 MB, 1 GB की फाइल, राइट। सो वो वाली चीज़ें आपने देखी हुई हैं। अब मैं आपको उससे एडवांस चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि एक्चुअल एडिटिंग स्कूल के अपने प्रोजेक्ट्स हैं। दीज आर मैसिव, दीज आर बिग, एंड दिस होपफुली विल गिव यू अ बंच ऑफ नॉलेज ऑन हाउ वी डू स्ट्रक्चरिंग इन एडिटिंग स्कूल, सही है। सो अब हम ऑन डिवाइस बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया है, फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर ऑन डिवाइस वर्क फ्लो। सो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम, लेट्स गो टू आवर स्क्रीन, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन पे जाऊंगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से स्क्रीन से गायब करूँगा ताकि हम फोकस करें सिर्फ और सिर्फ फोल्डर्स के ऊपर, सही है। सो लेट्स गो हियर। ये हमारे पास वर्क है। अब वर्क में हमारे पास ये दिस इज़ अ रैंडम फोल्डर, आप डेस्कटॉप के ऊपर वर्क का फोल्डर रख सकते हो, दिस इज़ गुड इनफ। मैं यूजुअली वर्क का फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे रखता हूँ, दिस गिव्स मी मैक्सिमम पावर व्हेन आई एम डूइंग समथिंग। व्हाट आई वांट टू शो यू इज़, ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स एजेंसी है जिसके प्रोजेक्ट्स आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। मैं ये नहीं दिखाने लगा, ये आपने पहले एडिटिंग मास्टर क्लास में देखे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एडिटिंग स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ओके। सो दोबारा से हम एक चीज़ देखते हैं। बिफोर आई शो यू दिस, मैं आपको डिविजन्स में दोबारा से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं दोबारा से हमारे पास स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं स्क्रीन शेयर के अंदर हमारी दोबारा से स्ट्रक्चरिंग पे बात करूँगा। हमारी स्ट्रक्चरिंग क्या है यहाँ पे, क्लाइंट प्रोजेक्ट, क्लाइंट या प्रोजेक्ट लेवल, रॉ फुटेज, रेंडर्ड, एसेट्स एंड प्रॉक्सीज। ये भूलना नहीं, ये मैं दोबारा से आपको ये वाले 5 पॉइंट्स अपने पास कहीं पे लिख लो ताकि ये आपको नज़र आ रहे हो। सो अगर मैं एडिटिंग स्कूल के इस वक्त फोल्डर्स के ऊपर आता हूँ
तो हम लोगों ने ना सिंप्लीफाई किया हुआ है कुछ चीज़ों को। हम लोगों ने सबसे पहले रखे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, सही है। सो अब एडिटिंग स्कूल एक बहुत बड़ी कंपनी है, राइट, जिसका मतलब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स को मैंने किस तरह डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया मास्टरी कोहोर्ट का प्रोजेक्ट था, हमारे पास एडिटिंग एक्सप्लेन जो कि सिर्फ एडिटिंग स्कूल का यूट्यूब और एडिटिंग स्कूल का एक एक्स्ट्रा इंस्टाग्राम चैनल है, वो है, राइट। हमारे पास 5 डे एडिटिंग चैलेंज हमने किया था। सो अब क्योंकि एडिटिंग स्कूल खुद में एक क्लाइंट है, जिसका मतलब एडिटिंग स्कूल इज़ माय कंपनी, विच मीन्स हम लोग का प्रोजेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, क्लाइंट लेवल पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप क्लाइंट लेवल पे हो तो पहले आप क्लाइंट का नाम रखोगे और उसके बाद आप प्रोजेक्ट लेवल पे जाओगे। सो क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, अब उसके अंदर आप जाके ये सारे प्रोजेक्ट सेट कर रहे हो। ओके, सो हम आते हैं हमारे लेट्स से कोर्सेज सेक्शन पे। सो दिस इज़ द मास्टर क्लासेस जितनी भी एडिटिंग स्कूल के अंदर होती हैं। सो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है रॉ कैमरा वीडियो। अगैन ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी, रॉ कैमरा वीडियो हम लोगों ने सेपरेट रखा हुआ है फिनिश्ड वीडियो से। फिनिश्ड वीडियोस यहाँ पे, रॉ कैमरा वीडियो यहाँ पे। अब अगर मैं रॉ कैमरा वीडियो को खोलता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट मास्टर क्लासेस जो हैं उनके प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने पहले मास्टर क्लास का प्रोजेक्ट उसके अंदर रॉ नहीं बनाया, सही है, और मैं बताता हूँ क्यों नहीं बनाया। सो मैं चला जाता हूँ लेट्स से कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास पे। अभी ये कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास बन रही है, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। हर मॉड्यूल को मैंने स्ट्रक्चर किया हुआ है। मॉड्यूल 1 क्या है, मॉड्यूल 2 का है, मॉड्यूल 3 क्या है। अगर मैं इस मॉड्यूल 1 को खोलूँ, इस मॉड्यूल 1 में हमने क्लासेस अभी तक नहीं डाली हुई, लेट्स गो टू मॉड्यूल 2। अगर मैं मॉड्यूल 2 को अब खोलूँ तो मॉड्यूल 2 के अंदर मेरे आपको ऑप्शंस मिलेंगे क्लासेस के, और फिर हर क्लास को मैंने नेम किया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरीज फॉल करती हैं। एक होती है कि आप नंबरिंग दो, या दूसरी होती है आप नेमिंग दो। ओके, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं बिफोर वी जंप इनटू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ये नंबरिंग और नेमिंग के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है, समझना थोड़ी सी बात को। जो आपके पास नंबरिंग होती है ना, मैं साथ साथ देखूं कि मेरी चैट होपफुली किसी को सबको सही तरह नज़र आ रही है। ओके, ये जो नंबरिंग होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने एक फ़ोल्डर को नाम दिया है, लेकिन आपने उसको जो नाम दिया है वो इंग्लिश लेटर्स के अंदर नहीं है। सो बाय दैट आई मीन, जिस तरह मैंने रॉ कैमरा वीडियो दिया हुआ है, आपने रॉ कैमरा वीडियो उसका नाम नहीं दिया हुआ, आपने उसका नाम दिया हुआ है समथिंग लाइक 05/06/2025। इसका मतलब 5 उसकी डेट है, 5 उसका मंथ है, और 2025 उसकी डेट है। अब आपने ये नेमिंग दी हुई है। ये नेमिंग कब काम आती है? ये नेमिंग तब काम आएगी जब आप एक्चुअल फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द एडिटर्स राइट नाउ जो यहाँ पे हैं वो सारे काम कर रहे होंगे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो आपको मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, उनके प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन भेजते हैं। आपको डेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है फोल्डर स्ट्रक्चरिंग में, आपको ज़रूरत है नेम्स की। सो यूर नॉट गोइंग विद नंबर्स, यूर गोइंग विद नेम्स। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आप काम नहीं कर रहे, आपका बहुत ज़्यादा इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आप नंबर्स रखोगे। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। आई एम गोना स्विच बैक टू माय स्क्रीन शेयरिंग। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त ना फोल्डर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, सही है। ये हो गया रॉ कैमरा वीडियो, कि रॉ कैमरा वीडियो सेफ एसेंशियली काम कैसे करती है। अब हमारे पास आते हैं फिनिश्ड वीडियोस। अब ये जो फिनिश्ड वीडियोस है ना, इसके अंदर मैंने रखी हुई है हमारी पूरी की पूरी एडिटिंग मास्टर क्लास अलग से, सही है। यहाँ पे फाइल्स रेंडर होके आती हैं, और चेक करना मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 ऑल द वे टू मॉड्यूल 11 यहाँ पर ही रखा हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, सिर्फ हमने इनको अलग क्यों किया है? मतलब हम ऐसे भी तो कर सकते थे इसकी जगह कि हम लोग यहाँ पे जाते कोर्सेज की जगह, हम यहाँ कोर्सेज पे जाते और रॉ कैमरा की जगह मैं पूरे का पूरा प्रोजेक्ट रख देता एडिटिंग मास्टर क्लास, और उसके अंदर मैं डिवीजन करता। वो हम इस तरह से नहीं करते, क्योंकि कई बार आपको क्विकली 3-4 आपकी मास्टर क्लासेस है, राइट, या कोई भी क्लाइंट के 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। क्लाइंट कहता है यार मुझे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ना सारी फिनिश्ड वीडियोस भेज दो। अब आप क्या हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, उसकी फिनिश्ड वीडियोस ढूंढोगे और उसको सेंड करोगे? उससे अच्छा नहीं है सारे प्रोजेक्ट्स जो आपके मेजर हैं, लाइक कोर्सेज, उनका एक मेजर काम है क्लाइंट का। अब उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप एक बार इस फोल्डर को उठाओ और गूगल ड्राइव पे फेंक सको। दैट इज़ वाई वी कीप इट सेपरेट। अब जिस तरह ये वाला फाइल है हमारी फिनिश्ड वीडियोज़, सिर्फ इसका साइज़ 177 GB है। ये एडिटिंग मास्टर क्लास का रेंडर्ड साइज़ है। रॉ साइज़ हमारा 1 TB से ऊपर है। जो हमारी सिर्फ रेंडर्ड हुई हैं फुटेजेस, उनका साइज़ 177 GB, और ये सिर्फ एक मास्टर क्लास है। कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास प्रॉब्ली 400-500 GB की होगी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिनिश वीडियोस सेपरेटली। एक और चीज़ मैंने आपसे बात की थी एसेट्स की। अगर हम एसेट्स पे आएँ तो यहाँ पे मैंने एसेट्स अलग से रखे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूयॉर्क नज़र आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ वो किस वजह से है, क्योंकि हमने शेयर्ड एसेट्स लाइब्रेरी थोड़ी सी साइड पे रखी होती है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। बट यहाँ पे आपने एसेट्स के साथ रखे हुए हैं। अगर आपने इन प्रोजेक्ट ऑन एसेट्स को काम करना है, अगर वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके इस सिर्फ आपकी जो एक वीडियो पे आप काम कर रहे हो या सीरीज़ पे काम कर रहे हो, अगर वो एसेट्स सिर्फ इस सीरीज़ में यूज़ होने हैं ना, फिर आप उनको रखोगे
मेगा फोल्डर के अंदर, जिस तरह कोर्सेज का हमारा मेगा फोल्डर है, आप इसके अंदर रखोगे। अगर तो अब आपके एसेट्स ऐसे हैं जो आप ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हो, सिर्फ इसी एक सेक्शन में यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप एक अलग से फोल्डर बनाओगे, जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, जिसका नाम है एडिटिंग एसेट्स। अब हम आते हैं मज़े से एसेट्स के सेक्शन में। अब एसेट्स सेक्शन में आपको हर चीज़ की डिवीजन रखनी है। याद रखना, यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी आसान कर रहे हो। एक बार आपने एसेट डाउनलोड किया, यूजुअली एडिटर क्या करते हैं, एक बार एसेट को डाउनलोड किया, वो डाउनलोड नहीं पड़ा हुआ है, उसको प्रोजेक्ट के अंदर फेंका, यूज़ किया, रेंडर किया, भूल गए। अब वो प्रोजेक्ट जब दोबारा यूज़ करना है तो आप पागल हो जाओगे कि भाई ये क्या कर दिया आपने, राइट। एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाके अपने सारे के सारे अपने एसेट्स को अलग से डिवाइड करके रखना है। सो यहाँ पे ना एडिटिंग एसेट्स के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा फोल्डर्स हैं। यू माइट बी सेइंग कि व्हाई सो मच डाइसेक्शन। आई वांट टू मेक श्योर कि जब भी मैं ये वो एसेट्स है जिन पे मैंने दोबारा बार बार आना है, सो अगर मैंने दोबारा इनको आके यूज़ करना है तो मेरे पास मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरे फ्यूचर सेल्फ को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, उस टाइम पर जब प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड लगेंगे एक प्रॉपर फोल्डर में उसको फेंकने में, लेकिन मैं वो मेरी आगे के लिए लाइफ बहुत आसान कर देगा। जिस तरह मैंने अपने जो साउंड इफेक्ट्स की फाइल्स हैं ना, ये चेक करो, मैंने इतनी ज़्यादा बनाई हुई है कि मुझे अब साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट से, मैं नहीं करता। और ये अगर जाके देखो, मैंने मल्टीपल फोल्डर्स भी बनाए हुए हैं जिनके अंदर मल्टीपल फाइल्स फोल्डर्स के अंदर है, राइट। और अब मैंने डविंची का जो ऑटो कनेक्ट होता है उससे कनेक्ट किया हुआ है, सो मैं सिर्फ सर्च करता हूँ। मैं एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ मैं SFX के लिए हार्डली कभी इंटरनेट पे जाता हूँ। यूजुअली सारे साउंड इफेक्ट्स मुझे मिल जाते हैं क्योंकि मैंने वो लाइब्रेरी पूरी की पूरी जो मुझे बार बार रीयूजेबल होती है वो मैंने बना के रखी हुई है। सो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने बड़ी अच्छी स्ट्रक्चरिंग की हो यहाँ पे। अगैन दीज आर अ बंच ऑफ अदर फोल्डर्स दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। हर फोल्डर को मैंने नाम दिया हुआ है उस तौर पर जिस तौर पर मुझे उसको फ्यूचर में यूज़ करना होगा। अगर मैं बात करूँ PNGs की, सो यू कैन सी वी हैव अ बंच ऑफ PNGs यहाँ पे एज वेल। मैंने लोगोज डाले हुए हैं, जिस तरह डविंची का लोगो मैं वीडियोस में यूज़ करता हूँ, प्रीमियर का करता हूँ, फाइनल कट प्रो का करता हूँ। सो एवरीथिंग दैट आई यूज़ इन माई वीडियोज़, द लोगोज एंड एवरीथिंग जो रीयूजेबल है, ऑल ऑफ दोज आर देयर इन एडिटिंग एसेट्स। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन हुए हों। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ आ गई है लॉन्ग फॉर्म की 1 टेराबाइट प्रोजेक्ट, 500 GB प्रोजेक्ट, उनको कैसे मैनेज करना है। अगर हम थोड़े छोटे प्रोजेक्ट्स पे जाएं, जिस तरह एडिटिंग स्कूल की रील्स होती हैं, तो उसको कैसे करना है। अब मैंने उसकी डायसेक्शन अलग से की हुई है। जिस तरह हमारे पास ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर मैं ऑर्गेनिक कंटेंट पे आऊँ तो हमारे पास रॉ कैमरा वीडियो, अगैन लुक एट द फोल्डर structuring that we have kept the same. Now you have to understand one thing. Right now editing school is an organization of more than around 9 people, right, including the software that we are working on. अब जब आपके पास इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चरिंग रखनी होती है जो हर एक को अंडरस्टैंड कर रहा हो। यानी मैं किसी भी एडिटर को जो एडिटिंग स्कूल में फ्यूचर में हायर होता है उसको मैं भेजूँ, हर हमारे प्रोजेक्ट जो भी हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो सब फोल्डर स्ट्रक्चरिंग है वो सेम है। वो सेम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि लैंग्वेज, हम इसको लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करते हैं। हमारी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग इज़ आर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज सबके बीच में सेम होनी चाहिए। सो हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट में आप देख सकते हो सेम लैंग्वेज है। रॉ कैमरा वीडियो, रेंडर्ड वीडियो, यहाँ पे लट्स वगैरह हैं जिस पे हम साइड पे काम कर रहे हैं। बट खैर, अगर मैं रॉ कैमरा वीडियो पे आऊँ तो ये आप वीडियोस देख सकते हो। बाकी सारी वीडियोस मैंने अपनी हार्ड ड्राइव में भेज दी हैं आपको, तब यहाँ पे कम नज़र आ रही हैं, लेकिन ये अब मैंने रॉ कैमरा वीडियोज़ यहाँ पे रखी हुई हैं। नाउ इफ़ वी गो टू ट्रैवलिंग द वर्ल्ड वाली रील, सो यू कैन सी मैंने रॉ कैमरा वीडियो के अंदर भी रॉ ऑडियो को डिफरेंशिएट किया हुआ है। अगर आपके पास रॉ ऑडियो नहीं है फिर टेंशन ना लो, अगर क्लाइंट रॉ ऑडियो नहीं भेजता, हम यूजुअली रॉ ऑडियो के साथ काम करते हैं। 32 बिट ऑडियो हम अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, हम 16 बिट पे नहीं रहते। सो आपके पास यहाँ पे आप मिनी फोल्डर उसका भी बना सकते हो। बी रोल्स हमने जो यूज़ करने हैं उसका भी फोल्डर है, बट मेगा जो स्ट्रक्चरिंग है वो आपको हमेशा अपनी ये वाली रखनी होगी, एंड ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे आपकी सेम लैंग्वेज हो, जो सब समझ रहे हो, आप फ्यूचर में भी उसको समझ पाओ, आप रिकनेक्ट कर पाओ बड़ी आसानी से। यू कैन हैव अ लुक एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द अदर फोल्डर्स दैट वी हैव एज वेल। बॉट एसेट्स के हमने अलग से फोल्डर रखे हुए हैं, वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट जाता है उसके अलग हैं। सो दिस वाज द मेगा स्ट्रक्चरिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको अब यही वाली बात थोड़ा सा वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक हमारा बड़ा फोल्डर हमने रखा हुआ है, सही है, कंपनी का फोल्डर है, बड़ा फोल्डर है। उसके अंदर कंपनी के कितने प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाती है, एक शॉर्ट फॉर्म का फोल्डर बनाओ। अगर वो बड़ी लॉन्ग फॉर्म बनाती है, यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म का बनाओ। अगर वो कोर्सेज बनाती है, कोर्सेज का बना दो, ठीक है। अब उसके अंदर आपने रॉ कैमरा वीडियो और रेंडर्ड वीडियोस के फोल्डर्स बनाने हैं हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर उसके अंदर वो जो रॉ कैमरा वीडियो का फोल्डर होगा, उसके अंदर जो आप एक फोल्डर बनाओगे वो होगा उस पर वीडियो का फोल्डर। जिस तरह आपने कोई एक रील बनाई है, उस रील का आप नाम लिख रहे हो, फोल्डर बना रहे हो, और अब उसके अंदर आपने अपनी सारी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कंप्लीट क्लीन स्ट्रक्चरिंग। 5 साल बाद खोलो ना, प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने ऑनेस्टली मैं प्रोजेक्ट अपने 5 साल पुराने प्रोजेक्ट खोलता हूँ, ऐसे निकलते हैं, क्योंकि इट्स आई हैव वर्कड ऑन इट। लाइक इट, आई एम नॉट गोना लाई, द
पिछले कुछ शुरू के जो मेरे प्रोजेक्ट थे पहले 1-2 साल के, उनमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज बिल्डिंग दिस फोल्डर स्ट्रक्चर इट टुक मी अराउंड 3 to 4 years ऑफ टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। शुरू में मैं छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। जैसे जैसे मैंने बड़ों पे मूव किया मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें किस तरह की स्ट्रक्चरिंग करनी है। सो इसको ना सिर्फ जाके कॉपी पेस्ट करो, जो मैंने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बताया है, एंड यू वुड बी फाइन। लिटरली जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंटायर स्ट्रक्चर दैट आई हैव शोन यू। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। नाउ वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज गोइंग टू बी इनसाइड NLE ब्रेकडाउन। यानी आपका जो नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जब आप उसके अंदर जाते हो तो आपकी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग किस तरह की होती है, राइट? नाउ हियर वी हैव अ बंच ऑफ थिंग्स दैट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट। अगेन जस्ट copy paste these things and you should be fine. Number 1 is folders and projects. अब ये वो चीज़ है जो डविंची वालों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी, जो प्रीमियर वाले हो तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। सो मे बी अगर जब ये मैं स्क्रीन पे लाइव समझा रहा हुआ तो स्किप कर देना, बाद में हम इस पर बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है वो होती है रशेज़। सो पोस्ट प्रोडक्शन की दुनिया में दिस इज समथिंग जो आप फिल्म मेकर्स से ज़्यादा सुनोगे, जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज को एडिट करते हैं, कलर ग्रेड करते हैं, या जो शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर, जिस तरह इंडी शॉर्ट फिल्म्स पे मैं काम करता हूँ, जो उस पर काम करते हैं, आप उनसे एक टर्म सुनोगे विच इज़ गोइंग टू बी रशेज़। सो रॉ कैमरा वीडियो हम लोगों ने एक लैंग्वेज डिफाइन की हुई थी। जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर आते हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी प्रोजेक्ट फाइल्स आप मल्टीपल लोगों में शेयर करते हो। जिस तरह उसामा वाज ऑन अ मीटिंग, अगर आप लोग को याद हो, उसने PSL की एक वीडियो को एडिट किया था, और वो वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल थी वो गई थी टर्की। वो टर्की गई थी सिर्फ कलर ग्रेड होने पोस्ट ब्रदर्स के पास, राइट? सो पोस्ट ब्रदर्स को सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैंग्वेज है वो सेम होनी चाहिए। सो पोस्ट प्रोडक्शन की दुनिया में आपके पास जो लैंग्वेज होती है दैट इज कॉल्ड रशेज़। जितनी रॉ फाइल्स हैं आपके पास, आप उनको बोलोगे रशेज़। इसको कहीं पे लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। दूसरी चीज़, रशेज़ के बाद हम लोग को जो देखने की ज़रूरत है वो है टाइमलाइंस। सही है? नाउ टाइमलाइंस फोल्डर सिंपल ईजी एंड दैट, उस पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है एसेट्स। नाउ एसेट्स इज वन थिंग जो आपको देखने में छोटी लगती है, लेकिन एसेट्स का फोल्डर मेरा यूजुअली सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा डाइसेक्ट करता हूँ आगे जाके। और अगैन द होल रीज़न फॉर दैट इज़ कि एवरीथिंग इज़ मिनिमल, क्लीन, टू द पॉइंट। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ वी आर नॉट गोना वेस्ट एनी मोर टाइम। ये आपको 4 चीज़ें होपफुली समझ आ गई होंगी जो मैंने समझाई हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना फोल्डर स्ट्रक्चरिंग इनसाइड NLE का जो पूरा वर्क फ्लो है वो आप लोगों को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाके दिखाता हूँ। और ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने लगा हूँ हमारे अब तक के सेकंड सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था एडिटिंग मास्टर क्लास। नाउ द सेकंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट now that is the second biggest project, because the first biggest project we're working on is color grading masterclass, but I'm going to show you अभी तक का जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है कि उसके ऊपर हम लोगों ने सारी चीज़ किस तरह से इम्प्लीमेंट की है। ओके, सो अब हम जाते हैं हमारे एडिटिंग स्कूल के डाटाबेस के अंदर। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। काइंड ऑफ लाइक मैंने फोल्डर स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे वैसी रखी हुई है जैसी मेरी इन एक्चुअल रियल लाइफ रियल फाइल के ऊपर डाटा स्ट्रक्चरिंग थी। मैं यहाँ पे फोल्डर्स बना रहा हूँ। 2 तरह की आपके पास सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन आपके पास वो है जिसमें आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनके अंदर आप डाटा मैनेजमेंट और वो चीज़ें जो है ना वो सेम रख रहे हो, और एक आपके पास ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आप एक क्लाइंट है जो कि आपके पास बहुत बड़ा क्लाइंट है और उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अभी मैं आपको बड़े क्लाइंट वाली चीज़ समझा रहा हूँ और फिर हम जाएंगे छोटे क्लाइंट्स वाली चीज़ पे। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे फोल्डर्स हैं उनको रखा हुआ है इस तरह कि जिस तरह मैंने एक्चुअल रॉ में रखा हुआ था, राइट? सो हमारा एडिटिंग एक्सप्लेन जो यूट्यूब है उसको मैंने यहाँ पे अलग से रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम जाते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट पे, तो ऑर्गेनिक कंटेंट के आपको फोल्डर की रील्स अलग से नजर आएंगी। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि DaVinci Resolve के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपकी जो डाटाबेस है उसके अंदर आप एसेट्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में शेयर कर सकते हो। अगर मैं दूसरी डाटाबेस पे चला जाता हूँ इस पे ना, तो इस पे वो चीज़ें शेयर नहीं होंगी। वो चीज़ें शेयर होंगी अगर मैं यहाँ पे रहते हुए एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सो मेरा बड़ा क्लाइंट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह एडिटिंग स्कूल है जो कि हमारा प्रोजेक्ट है। सो उस पर हमारे पास मल्टीपल काम होता है। तो मैंने मल्टीपल फोल्डर्स यहाँ पे उसी तरह बनाए हुए हैं जैसे मैंने वहाँ पे बनाए हुए थे। अब हम आते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं इस चीज़ के अंदर बिफोर आई एक्सप्लेन यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सही, लेट्स गो टू एडिटिंग एक्सप्लेन्ड। अब एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के अंदर मैं जाके बना रहा हूँ हमारी सारी के सारे प्रोजेक्ट्स। जिस तरह अभी थंबनेल्स हैं, जितनी एडिटिंग एक्सप्लेन की यूट्यूब पे थंबनेल्स होती हैं मैं DaVinci के अंदर खुद बनाता हूँ, राइट? सो यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन मिल गई है जिसके अंदर सारी थंबनेल्स की टाइमलाइन है। उस तरह आपको यहाँ पे मल्टीपल और टाइमलाइंस मिल रही हैं। लेट्स गो टू ऑर्गेनिक कंटेंट। यहाँ पे आपको जितनी रील्स मैंने एडिटिंग स्कूल की एडिट की हुई हैं वो सारी की सारी मैंने एक प्रोजेक्ट में रख के बनाई हुई हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डायनामिक प्रोजेक्ट स्विचिंग का। इसलिए मुझे हर
रील के लिए प्रोजेक्ट बनाना मेरे लिए अच्छा है, रादर देन कि मैं एक टाइमलाइन के ऊपर सारे की सारी रील्स को फेंकूँ। ये सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर आप करोगे, जो कि मैं अभी सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने के बाद आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन बाकी कैटेगरीज के अंदर आप ये चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट फाइल ज़ाया हुई तो आपकी जितनी रील्स थी, जितना कुछ था उसके अंदर, वो भी ज़ाया, और इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्विचिंग कर सकते हो इन सारों के बीच में। सो ये तो हो गया जब आप एक बड़े क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। अब अगर आप काम कर रहे हो मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ और आपके जो एसेट्स हैं ना वो यूजुअली इन क्लाइंट्स के बीच में स्विच होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, आप न्यू फोल्डर बनाओगे और आप क्लाइंट का नाम रखोगे। जिस तरह अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के अंदर आप जाओगे, जिस तरह फाउंडर का एक फ़ोल्डर आप बना दोगे, एक ईए का बना दोगे, आपका एक और क्लाइंट है, और आपका कियाला एक और क्लाइंट है। अब इसके अंदर आप जाके रख सकते हो एक और फोल्डर, मिनी फोल्डर, दैट कुड बी शॉर्ट फॉर्म। एक और फोल्डर आप रख सकते हो, दैट कुड बी लॉन्ग फॉर्म, blah blah blah. So now you have multiple folders and you can do a bunch of things here. It's good, it's easy. जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोग काम कर रहे हो फ्रीलांस पे तो आपको इस तरह के फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। हर चीज़ को क्लीन रखो, फिनेस करके रखो। मैं दोबारा आता हूँ एडिटिंग स्कूल के फोल्डर स्ट्रक्चरिंग के अंदर। ये होगी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग। फोल्डर स्ट्रक्चरिंग के अंदर हम गए और हम लोगों ने देख लिया कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग हम कैसे कर रहे हैं। हम पर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर जिस तरह रील्स पे बनाया हुआ। ठीक है, अब मैं आपको सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, दैट वॉज, लेट मी जस्ट गेट बैक टू यू गाइज एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट वन थिंग विच वॉज रशेस, टाइमलाइन एंड एसेट्स। ये याद रखना, इसके ऊपर हम अब डायरेक्ट जाने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डविंची में। ठीक है, सो मैंने डविंची ओपन किया हुआ है अपने पास और मैं ओपन करता हूँ हमारा एडिटिंग मास्टर क्लास विच इज़ एक्सट्रीमली बिग प्रोजेक्ट। हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के मुकाबले में हाफ बिग है बट स्टिल क्वाइट बिग। अब ये जितना डाटा आप देख रहे हो ना ये भी ओपन होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ये डाटा पूरे का पूरा ओपन हो गया है। डिस्कनेक्ट हुआ आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये सारा डाटा मैंने अपनी SSD में ट्रांसफ़र किया हुआ है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं अपने सबटाइटल का जो ट्रैक है उसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। वेयर इज़ वेट, ये सबटाइटल ट्रैक ही है, डिलीट ट्रैक, गॉश इट्स डिलीट एम्प्टी ट्रैक, देयर यू गो। ओके, सो अब हम आ गए हैं हमारे पास एक पूरे के पूरे हमारे एक बाय फार द बिगेस्ट एडिटिंग स्कूल के फोल्डर के ऊपर। अब मैं एक बड़े मज़े की चीज़ बताऊं, मैंने आज तक ये पूरे का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर किसी को नहीं दिखाया इस पब्लिक के अंदर जाके। मैंने वैसे दिखाया हुआ है फोल्डर स्ट्रक्चर, मैंने पब्लिक में आज तक आगे किसी को नहीं बताया। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये है ना, आपको कोई इंटरनेट पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगे दिखाएगा नहीं, क्योंकि यूजुअली दीज आर वेरी बिग नीश डाउन काम है, ज़्यादातर एडिटर्स को फोकस ही नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। ओके, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी टाइमलाइन को बंद कर देता हूँ अभी। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिर्फ 3 फोल्डर हैं। अगेन आई एम नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट फाइल जस्ट फॉर मी, आई एम मेकिंग इट फॉर माई एडिटर एंड आई एम मेकिंग इट फॉर माई फ्यूचर। सिर्फ 3 फाइल्स हैं, काम हलवा, सारों के लिए ज़िंदगी आसान है, राइट। यही फाइल बाय द वे मैंने एडिटिंग स्कूल का जो एडिटर है इस वक्त उसको भी भेजी हुई है और इस वजह से उसका भी काम आसान हुआ है। अब हम ओपन करते हैं एक एक फाइल को और हम जाते हैं और डाइसेक्ट करते हैं कि एक एक फाइल के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास आती है रशेस। ओके सैफ, इंटरेस्टिंग, ये तुमने ऑलरेडी बताया हुआ था क्या है। सो मैं अगर रशेस को खोलूँ तो यू विल सी यहाँ पे मैंने हर मॉड्यूल को डाइसेक्ट किया हुआ है। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। ये जो आप पूरे का पूरा प्रोजेक्ट इस वक्त देख रहे हो ना, एक आपके पास जो एक प्रोजेक्ट फाइल है, इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर 1 टेराबाइट से ऊपर का डाटा है। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस प्रोजेक्ट इज़। अब मैं इसको ना थोड़ा सा डाइसेक्ट करता हूँ। तो हमारे पास हर मॉड्यूल की मैंने रशेज़ रखी हुई हैं। अगर मैं चला जाऊँ लेट्स से मॉड्यूल नंबर 9.5 पे, जो कि हमारा लेटेस्ट मॉड्यूल था एडिटिंग मास्टर क्लास के अंदर, तो यहाँ पे मैंने अब क्लासेस की डाइसेक्शन की है। ठीक है, मैं ज़िंदगी अपनी आसान करना चाह रहा हूँ, बाद में मुझे इन रॉ फाइल्स को आके देखना है। अब मैं क्लास 1 को अगर ओपन करूँ तो चेक करो, रॉ ऑडियो, रॉ वीडियो, दोनों के फोल्डर्स मैंने अलग से रखे हुए हैं। मैंने एक फोल्डर के अंदर चिपका नहीं दिया दोनों चीज़ों को। अब क्या हुआ इससे, मुझे किसी भी मॉड्यूल की रशेज़ ढूंढनी थी, वो रशेज़ मुझे यहाँ से मिल गई। लेकिन ये जो फोल्डर है ये आपको सिर्फ एक बार चाहिए जब आपने प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें सबमिट करनी है। अगर आपकी प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें सबमिट हो गई हैं, आपको ये फोल्डर दोबारा नहीं चाहिए होता, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आप इस फोल्डर को नहीं खोलोगे। आपका काम होगा जिस फोल्डर से, वो फोल्डर है हमारे पास टाइमलाइंस का। ये इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके समझाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं फाइल्स को आगे कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ की टाइमलाइन बनाई हुई है। ठीक है, मॉड्यूल 1 का मैंने टाइमलाइन बनाई है, साथ में मैंने नेमिंग दी है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है नेमिंग देना। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें बार बार जाके नोशन के अंदर या किसी और फाइल के अंदर रेफरेंस करना पड़े चीज़ों को। नेमिंग देखो, इंट्रोडक्शन, डाटा मैनेजमेंट, जो असल में उस मॉड्यूल का नाम है जो पोर्टल पे लोगों को नज़र आएगा, और फिर उसके अंदर एक एक मैंने क्लास की
टाइमलाइन बनाई हुई है अलॉन्ग विद नंबरिंग। ये नंबरिंग क्यों ज़रूरी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ज़रूरी है क्योंकि जब मैं रेंडर करूँगा तो ये फाइल उसी नंबरिंग में नज़र आएगी और जब मैं अपलोड करूँगा तब भी उसी नंबरिंग में नज़र आएगी। ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है। सो अभी डायसेक्शन को समझो। आपने टाइमलाइंस का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर आपने मिनी फोल्डर्स बनाए हैं हर एक आपके मॉड्यूल के, और उस मॉड्यूल की जो आपकी टाइमलाइंस हैं उनके अंदर आपने टाइमलाइन का नाम लिखने से पहले 1 2 3 4 नंबरिंग दी है। वो नंबरिंग आपको रेंडरिंग में काम देगी क्योंकि आप फिर नंबर्स के स्ट्रक्चर में रेंडरिंग रखोगे अपने पास। तो इसलिए नंबरिंग बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे जब आप, क्योंकि यहाँ पे 77 फाइल्स हैं हमारे पास जो एडिटिंग मास्टर क्लास में, बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, तो हमारे लिए नंबरिंग बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ आ रही है। मॉड्यूल 9.5 पे जाते हैं। सेम वही चीज़ है, मैंने हर मॉड्यूल की अलग से नंबरिंग की हुई है। मेरी ज़िंदगी आसान है यहाँ पे जाके। कुछ और चीज़ें जो मैंने की होती हैं जब भी, क्योंकि मैं स्टैक टाइमलाइंस पे कई बार काम करता हूँ। स्टैक टाइमलाइंस क्या होती हैं? हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। आप यहाँ पे क्लिक करो डाविंची के अंदर, ये देखो आपकी स्टैक टाइमलाइन बन गई। सो यूजुअली मैं जो बड़ी टाइमलाइन पे काम कर रहा हूँ, अगर उससे मुझे कोई फ़नी मोमेंट मिल रहा है ना, तो मैंने यूजुअली फ़नी मोमेंट्स की एक टाइमलाइन बनाई होती है और मैं उसमें डाल देता हूँ, और वो ब्लूपर्स काइंड ऑफ अ चीज़ होती है। अगैन यू डोंट नीड इट, बट इट्स समथिंग दैट आई डू। आई एम वेरी cautious about my structuring to the last bit, so इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ। You don't have to use it, you don't have to go that complex in it. Okay, so this was the timeline की structuring. Again मैंने हर एक चीज़ को नेमिंग की हुई है properly ताकि फ्यूचर में कोई खोले उसको प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं हमारे सबसे बड़े फोल्डर के अंदर जो आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, एसेट्स। मैं कभी भी एसेट्स को फेंकता नहीं हूँ, और अगर तुम में से कोई भी है जो एसेट्स का एक फोल्डर बनाता है और उसमें अपने साउंड इफेक्ट्स, अपने PNG सारा कुछ फेंक देता है, यू गाइज आर किलिंग योर सेल्फ। इट्स अ डिजास्टर दैट यू गाइज आर डूइंग, राइट? क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, आपसे एसेट्स गुम हो जाएंगे। अब देखो, मैंने फ्यूजन क्लिप्स का एक अलग से एसेट रखा हुआ है, मैंने जनरल बी रोल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका अलग से एसेट रखा हुआ, फाइल आइकन्स का अलग है, मीटिंग्स जो मैंने उठा के यहाँ पे डाली थी हमारे पास उनका अलग है, म्यूज़िक का अलग रखा हुआ है। अगर ये नाम याद रखना चाहते हो रख लो। यूजुअली मैं भी आपको कुछ नाम बताऊंगा जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो नाम भी आप रख लो, मोर देन इनफ होगा। PNGs का अलग से रखा हुआ है, रैंडम एसेट्स जो मैं डालता हूँ वो अलग से हैं, रेंडर्ड साउंड इफेक्ट्स, हर चीज़ टू द कोर। एडोबी पॉडकास्ट से मैंने कुछ फाइल्स को क्लीन करके लाया था, मैंने 2 स्टेप क्लीनिंग की थी ऑडियो की, वो मैंने यहाँ पे अलग से रखी हुई है। सही है। सो वी डू अ बंच ऑफ थिंग्स इन एसेट्स। लेकिन आप लोग को जो याद रखने की चीज़ है, ज़रूरत है, वो है सिर्फ 2-4 चीज़ें। सो मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखूँगा जनरल। सो मैंने अभी सिर्फ आप लोगों को जनरल इन्फो देनी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ। आपको जो नाम रखने की ज़रूरत है याद हमेशा, वो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ उसका आप नाम रखोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी रशेज़। दूसरी चीज़ जिसका आप नाम रखोगे, बाय द वे मैं कमांड शिफ्ट एन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मैं यूजुअली शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, लाइफ आसान करते हैं। दूसरे का आप नाम रख रहे हो टाइमलाइंस, और तीसरी चीज़ जिसका आप नाम रख रहे हो, कमांड शिफ्ट एन फिर काम नहीं कर रहा, वो है एसेट्स। ये 3 फाइल्स मैंने रख दी। अब मैं एसेट्स के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके मैंने 3 चीज़ें रखनी हैं। सबसे पहले SFX, 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं रखूँगा यहाँ पे, दैट इज़ गोइंग टू बी, और बाय द वे रॉ ऑडियो आप रशेस के अंदर भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं यूजुअली रखता होता हूँ PNGs, इफ़ आई हैव टू यूज़ PNGs एनीवेयर। तीसरी चीज़ मैं रखता होता हूँ बी रोल, सो आप कई बार बी रोल यूज़ करोगे। चौथी चीज़ मैं यूजुअली रखता होता हूँ फ्यूजन क्लिप्स, अगर मैं फ्यूजन की क्लिप्स पे काम कर रहा हूँ, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कंपाउंड क्लिप्स। सो अगर आप कंपाउंड क्लिप्स पे काम कर रहे हो, सो मैं कंपाउंड क्लिप्स रखता हूँ। बाय द वे कंपाउंड क्लिप्स का मतलब नेस्ट्स होता है, सो आप इन दोनों को रिमूव करके एक बड़ा आसान नाम रख सकते हो नेस्ट्स का। अब क्योंकि आप कोई भी नेस्ट यहाँ पे बनाते हो, आप उसको टाइमलाइन पे दोबारा ड्रैग कर सकते हो, तो फिर मैं नेस्ट्स के अंदर जाके भी फोल्डर बनाता होता हूँ, यानी मॉड्यूल 1 के जो नेस्ट्स हैं कि मॉड्यूल 1 के अंदर कौन कौन से मैंने नेस्ट्स यूज़ किए हैं। सो नेस्ट का एक फ़ोल्डर भी मैंने बना दिया। सो ये मेजरली हमारे 4 सिग्निफिकेंट वाले हैं। अगैन आई माइट बी फॉरगेटिंग सम ऑफ द फोल्डर्स, एंड इफ़ आई एम फॉरगेटिंग मैं दोबारा उसको साथ साथ आके ऐड करूँगा जैसे जैसे मैं फाइल्स ऐड करता हूँ। लेकिन ये 4 जो है ना, ये मेरे पास कंपलसरी होते हैं। अगर मैं रॉ रशेस से हटा दूँ, यूजुअली मैं रशेस में रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर रॉ ऑडियो भी हमारी रख सकता हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड अगैन अदर देन दैट, आप मेरे यहाँ से जो स्क्रीनशॉट लिटरली ले लो जो मैंने एडिटिंग मास्टर क्लास के ऊपर दिखाए हुए हैं, एंड यू कैन जस्ट यूज़ अ बंच ऑफ दोज एज वेल। म्यूजिक, बाय द वे, यस, म्यूजिक इज़ वन दैट आई कीप एज वेल। सो this is how we do folder structuring inside of our software when we are working in a project. Now you must be asking, सिर्फ तुमने बोला है कि तुम हर रील का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट? तो यहाँ पे पूरी मास्टर क्लास को तुमने एक प्रोजेक्ट में क्यों फेंका है? इतनी बड़ी
पागलपन तुमने क्यों किया है? लाइक तुम एक एक क्लास का अलग से प्रोजेक्ट फाइल बना देते. नाउ येस यू आर राइट, मैं ये कर सकता था, बट द रीज़न आई डिड नॉट डू इट इज़ दैट लेट्स से मैं मॉड्यूल 1 के ऊपर जाता हूँ और मॉड्यूल 1 में मैंने रखा हुआ है पर्सनल वेलकम, एडिटिंग स्कूल वॉक थ्रू, कुछ और चीज़ें मैंने रखी हुई हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कनेक्ट है क्योंकि वो मेरी SSD के अंदर लगी हुई हैं, बट लेट्स से आउटलाइन एंड स्टफ लाइक दैट. अब प्रॉब्लम ये है ना, मैंने इन टाइमलाइंस के बीच में एसेट्स स्विच करने हैं बहुत ज़्यादा, और ये एक प्रोजेक्ट कंसिडर होगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है. अब मैं वो स्विच नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे बार बार ना इधर क्लिक करना है और मुझे नए प्रोजेक्ट पे जाना है. हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर स्विच करने का, बट इट्स स्टिल लॉन्ग. मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मैं अगले प्रोजेक्ट पे आ जाऊँ. सो इसलिए जो मेरे पास बहुत बड़ी मास्टर क्लास काइंड ऑफ अ थिंग होती है, या जो सीरीज़ होती है ना, उनके अंदर मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चरिंग को यूजुअली एक फ़ाइल के अंदर रखता हूँ और उस फाइल को मैं बार बार बैकअप करता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पूरी की पूरी जो आपकी डेटाबेस है उसको बैकअप करो. मैं अपनी डेटाबेस को हर 3 वीक्स to 4 वीक्स में बैकअप करता हूँ, और जो मेरा प्रोजेक्ट इस तरह का बड़ा होता है उसको मैं अलग से प्रोजेक्ट फाइल को एक्सपोर्ट करके बैकअप करता हूँ. मैं आर्काइव नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल छोटी सी 20 MB की बनेगी, 25 MB की, मैं उसको रेंडर करके साइट पे रख लेता हूँ. मेरी लाइफ आसान हो जाती है. अब यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गया. एक बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा इस तरह का, तुम एक फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो, तुमने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर काम कर रहे हो. जो तुम्हारे पास शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसको पर प्रोजेक्ट तुम लेके चल रहे हो. यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई है. व्हाट अबाउट समथिंग लाइक पॉडकास्ट्स? अब पॉडकास्ट पे अगर तुम काम कर रहे हो या तुम एक लंबी वीडियो पे काम कर रहे हो, जिस तरह भी ये एडिटिंग एक्सप्लेन की वीडियो है, अगर ये यूट्यूब पे जाती है तो ये 2 घंटे की वीडियो है. अगर तुम इस पे काम कर रहे हो और तुम्हें इनमें से स्निपेट्स निकालने हैं, तब तुम फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा रखोगे? अगेन बहुत आसान है. हमने एडिटिंग स्कूल की जो डाटाबेस है उसके अंदर एक और सेक्शन रखा हुआ है जिसको कहते हैं पॉडकास्ट्स. सो अभी मैं आऊँगा पॉडकास्ट्स के अंदर. अब पॉडकास्ट में मेरी जितनी पॉडकास्ट हुई हैं लोगों के साथ, जिस तरह भी मेरी सिर्फ ख़याम के साथ पॉडकास्ट हुई, मेरी एक और पॉडकास्ट भी हुई थी लेकिन वो अभी तक मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की. लेकिन अब जो ख़याम के साथ पॉडकास्ट हुई है ये एक फोल्डर है, ये एक प्रोजेक्ट फाइल अलग से है. राइट, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखना कुछ होगा. यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म को ना अलग से नहीं रख रहा. यहाँ पे मैंने फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं पर पॉडकास्ट, और इवन शॉर्ट फॉर्म भी पर प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं रहते हुए काम कर रहा हूँ. दिखाता हूँ कैसे. सो हमारे पास गेस्ट है और हमारे पास होस्ट है. सो यहाँ पे मैंने गेस्ट और होस्ट को अलग किया हुआ है, अगैन फॉर माई लाइफ की आसानी. एसेट्स को मैंने वैसे ही डिवाइड किया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था. अब आते हैं हम टाइमलाइन के ऊपर. सो टाइमलाइन में ना यहाँ पे मैंने एक मेजर पॉडकास्ट की टाइमलाइन रखी हुई है जो कि अलग से है. ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं एक्चुअली इसका मुझे और फोल्डर बनाना चाहिए जिसका नाम मुझे सिर्फ रखना चाहिए मेन पॉडकास्ट और समथिंग लाइक दैट. ऐसा नाम जो फ्यूचर में लोगों के लिए ज़िंदगी आसान कर दे. ठीक है, सो ये मेरे पास थी मल्टी कैम फुटेज, ये मेरे पास थी अलग से टाइमलाइन. ओके, सो ये मैंने सेट किया हुआ है. अब मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं 2 ऑप्शंस. एक है मेन पॉडकास्ट जिसमें मेन पॉडकास्ट की मेरे पास टाइमलाइन है. अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉडकास्ट को खोलूँगा और इस पॉडकास्ट को मैं यहाँ पे जाके ना सब डिवीजन कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मैं स्टैक टाइमलाइंस बना रहा हूँ. अब मैंने अपनी जो पॉडकास्ट होती है, ये फोल्डर स्ट्रक्चरिंग से आगे बात चली गई है डाटा मैनेजमेंट से, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए समझना. अब ये पूरी पॉडकास्ट है, इसमें पहले मैंने रॉ को अलग किया है, दोनों की क्लिप्स को अलग किया है, सबको फिक्स किया है. मैं जो चीज़ करने लगा हूँ ना वो ये है कि मैंने यहाँ पे जाके आराम से हर चीज़ को मार्कर्स दिए हुए हैं. सही है. सो पूरी पॉडकास्ट मैंने एक बार गो थ्रू की. जो पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जो मुझे लग रहा था वायरल जाएंगे, उनको मैंने कर दिया ग्रीन मार्कर. और जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वायरल नहीं जाएंगे लेकिन जा सकते हैं वायरल, उनको मैंने किया ब्लू मार्कर. सही है. और जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, और जितने मैंने अपलोड किए बाय द वे सारे के सारे वायरल हुए हैं, उनको मैंने कर दिया ऑरेंज. सही है. अब फॉर एन एग्जाम्पल इसमें से मैंने क्लिप निकालनी है जिस क्लिप का नाम है मैं क्लिप है उसके अंदर बोल रहा हूँ एडिटर बहुत अच्छा ना भी होना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिलायबल होना चाहिए. ठीक है, अब ये मैंने रिलायबल वाली बात की है. तो मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर आया और मैंने फोल्डर्स बनाया. यहाँ पे फोल्डर्स मैंने इस वजह से बनाया क्योंकि मैं मल्टीपल टाइमलाइंस बना रहा था. आपको फोल्डर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पर टाइमलाइन भी काम कर सकते हो. सो यहाँ पे मैंने एडिटर रिलायबल वाली एक टाइमलाइन बनाई हुई है जो कि इंस्टाग्राम है. मैंने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो इसको ना मैं यहाँ पे ओपन कर दूँगा या मैं एक और टाइमलाइन बनाता हूँ. लेट्स से मैंने ना एक और यहाँ पे बिन बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से समथिंग लाइक, मैंने पॉडकास्ट के अंदर बोला है VFX DaVinci इज़ गुड फॉर VFX, समथिंग लाइक दैट. मैंने कुछ ऐसा बोला है. सही है. आई एम जस्ट एडिंग रैंडमली. अब यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे इधर तो मैं यहाँ से खुद बेस टाइमलाइन बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइमलाइन की सारी सेटिंग इस टाइमलाइन में पड़ी हुई है जो हमारी रील्स के लिए एक्यूरेट होंगी, मैं इसको लिटरली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ
और इसका मैं नाम रख दूंगा DaVinci VFX। सही है, इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे, बल्कि नहीं यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा, इसको मैं खोलूँगा यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पे इसको DaVinci VFX कर रहा हूँ और मैं पिछली सारी की सारी फाइल उड़ा रहा हूँ। मुझे बस टाइमलाइन की सेटिंग्स चाहिए जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब ना मेरे पास है ये ग्रीन चीज़, और ये ग्रीन चीज़ मुझे पता है वायरल होने वाली है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये पक्का वायरल होने वाला है। सो मैंने इसको यहाँ से कट किया सिंपल, और इसको मैंने सीधा यहाँ पे आके, वेयर इज़ दैट, इसको उड़ाते हैं ऊपर वाले हिस्से को, इसको मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सो अब ये सारे का सारा कंटेंट मेरे पास पेस्ट हो गया है और अब मैं इस रील पे अलग से काम कर सकता हूँ। बाय द वे, अब मज़े की बात ये है कि अब मैं इनको, पिछली वाली को मैंने वैनिश कर दिया और अब मैं स्टैक टाइमलाइन पे अलग से यहाँ पे रहते हुए काम किया। और अब किसी भी एडिटर को मैंने फ्यूचर में दिया ये प्रोजेक्ट, मैंने खुद आके इस पॉडकास्ट को खोला, इसकी शॉर्ट्स निकाली, मेरे लिए हर चीज़ हलवा है, क्योंकि सारा का सारा कुछ मेरे पास कंप्लीटली स्टोर्ड है विद इन माई सिस्टम, एंड एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड टू द लास्ट बिट, टू द लास्ट कोर। Okay, this is how we do it inside of the software. Now, one more thing that I want to add here, अगर हम यहाँ पे आते हैं, अब जिस तरह कलाकार हमारा वीडियो कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर है जो एडिटिंग स्कूल ने बनाया है, जो कि इस वक्त बेटा वर्जन के अंदर है, सारी देसी लैंग्वेजेस हमारे कलाकार के अंदर है, राइट। सो मैं कलाकार को ओपन करता हूँ। अब कलाकार के क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होने वाले हैं, मुझे पता चलने वाला है, मुझे पता चल रहा है, तो मैंने कलाकार को एक अलग डाटाबेस में डाल दिया, क्योंकि कलाकार की कलर स्कीम अलग है, कलाकार की एनिमेशंस अलग है, कलाकार की जो मोशन ग्राफिक्स में यूज़ कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। तो मैंने कलाकार की एक अलग डाटाबेस बना दिया, क्योंकि मुझे कलाकार की शेयरिंग कलाकार के अंदर ही करनी है। मैं चाहता एडिटिंग स्कूल के अंदर एक फोल्डर भी बना सकता था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एडिटिंग स्कूल का ही है, लेकिन क्योंकि उसके सारे एसेट्स और मोशन ग्राफिक्स ही डिफरेंट हैं, तो मुझे एडिटिंग स्कूल से डाटा आसपास लेने की ज़रूरत होगी नहीं। सो इसलिए मैंने इसको एक अलग से पूरी की पूरी डाटाबेस के अंदर सेट कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ यू प्रॉपरली गो एंड स्ट्रक्चर थिंग्स inside of your software and inside of your computer as well. We went quite in depth. I showed you the exact systems of a company like Editing School does with multiple people. I hope this gave you a bunch of knowledge. अभी भी एक चीज़ रहती है, हम उस चीज़ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले I just want to have a look at some questions. If you guys have any questions, last चीज़ जो है वो बड़े मज़े की है, that is going to be the thing जो मुझे दानियाल ने मेंशन की थी। दानियाल मेंशनड कि यार एक्सटर्नल ड्राइव्स के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर क्या चीज़ होगी। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, एडिटिंग स्कूल हैज़ अराउंड क्लोज टू 6 टेराबाइट ऑफ एक्सटर्नल ड्राइव्स, जिसमें हार्ड ड्राइव और SSD बोथ आती हैं। हमारे पास अपना जो डाटा है जो हमारी एक्सटर्नल ड्राइव्स पे पड़ा हुआ है, दैट इज़ मोर देन 6 टेराबाइट्स। सो मैं जो इसके ऊपर नॉलेज दूंगा, that will be the best in the industry. You can trust on that, because we share, Mozam lives in the same city as I live in, so हम लोग सारे का सारा डाटा इन ड्राइव्स के थ्रू ही शेयर करते हैं, क्योंकि यूजुअली 300 GB 400 GB की फ़ाइल होती है जो हम एक मॉड्यूल शूट करते हैं, तो हमें वो करना होता है। सो उस पर मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन विल मूव टू द लास्ट सेक्शन। सो Danial, you have asked a question, go ahead. अच्छा सैफ भाई, since you have the paid वाला DaVinci, if you can open the उसका file explorer, वो जो file manager है, do you think you can मतलब cloud share जो इसमें एक feature है इसी में databases में, how does that work and how smooth is that? The cloud feature is the one जो मैंने एक बार $5 पेमेंट की थी Blackmagic को to use that feature. It's good if you're working in a way where you have 3, 4, 5 people. So right now if somebody is color grading, कोई काम कर रहा है motion graphics के ऊपर और कोई काम कर रहा है clean editing के ऊपर, then that's a good thing to have. But I do think that there are some disadvantages of that as well. आप proxies पे काम कर रहे हो तो क्योंकि हमारा workflow में color बहुत ज़्यादा involve होता है, so प्रॉक्सीज़ के ऊपर कलर बहुत अच्छा नहीं होता। आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम 10 बिट चाहिए अगर आप क्लीन की निकालना चाह रहे हो। तो इस वजह से हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स है मौजम मेरे करीब रहता है, इसलिए मुझे इतना यूज़ नहीं करना पड़ता। बट इफ़ आई हैव टू यूज़ इट, इट्स अ ब्यूटिफुल फीचर, आई थिंक वन कैन यूज़ इट। आई डू यूज़ द रिमोट, जो हमारे पास मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन होता है, यूज़ इट ऑन माई iPad एंड आई ऑल्सो यूज़ इट ऑन माई फ़ोन टू मेक श्योर कि कलर एक्यूरेट मेरे पास हर चीज़ है। फॉर दैट आई यूज़। All good? Okay, guys, now we can move to the most exciting part. You guys might have seen these small little things. These are called SSDs, right? ये मेरे पास जो SSD है, this is a T7 SSD. Now the latest one is T9 SSD. So जो हमारे पास SSDs होती हैं,
सो द वे वी वर्क इज़ कि जब भी कोई लेटेस्ट SSD आती है उस टाइम तक हम लोगों ने एडिटिंग स्कूल की कोई ना कोई लेटेस्ट मास्टर क्लास निकाली होती है. सो फिर हम वो लेटेस्ट SSD बाय करते हैं और हम सारे का सारा डाटा उसमें डालते हैं, क्योंकि आई हैव अ 4 TB ऑफ मैक बट द अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट वी मेक ख़त्म हो जाता है डाटा. अभी भी मेरे पास 1 TB बचा हुआ है, 3 TB यूज़ हुआ है, राइट. सो द होल एडिटिंग मास्टर क्लास के जितना रॉ है जिसकी वजह से आपको कनेक्ट हुई हुई नज़र नहीं आ रही थी, वो सारी की सारी इस T7 शील्ड के ऊपर है जो कि 1 TB की है, राइट. जो हमारे पास कलर ग्रेडिंग वाली मास्टर क्लास है पूरी की पूरी, दैट इज़ ऑन T9 विच इज़ सैमसंग्स latest SSD which is fast, but again you can even go with T5, nothing wrong with it. The good thing about these ones is that आप इसके ऊपर रहते हुए एडिट कर सकते हो. So अगर आपके पास Mac है, आपके पास Thunderbolt है जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप SSD के ऊपर रहते हुए भी एडिट कर सकते हो. T9 के ऊपर बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, मैंने खुद टेस्ट की हुई है. ओके, सो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनके ऊपर डाटा अगर शेयर करना है तो आपने क्या करना है. और समथिंग दैट यू वुड रियलाइज इज़ दैट वो काफ़ी फेमिलियर होगा उस चीज़ से जिस चीज़ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो. जिस तरह मैंने आपको पूरे का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बताया, आपको काफ़ी चीज़ें ना बहुत फेमिलियर सी लगेंगी, सही है. सो मैं अब क्या करूँगा कि मैं हमारी इस SSD को जोड़ूंगा हमारे कंप्यूटर के साथ. सो यू विल हैव टू बेयर विद मी फॉर 1 लिटिल सेकेंड. आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट विद माई PC laptop. Let me see if it's connected. It's connected. There you go. Okay, so I'm gonna share my screen here. All right, as you can see, my screen is here. मैं यहाँ पे डाल दूँगा इन डब्बों को. Let's go and see what this SSD is, right? मैं इसको ओपन करता हूँ. हम लोग अपनी जो पिछला फोल्डर ओपन हुआ था उसको बंद कर देंगे यहाँ पे जाके. अब मैं इस फोल्डर के ऊपर रहते हुए काम कर रहा हूँ, सही है. सो इस फोल्डर के अंदर आप देख रहे हो हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ ज़्यादा, सीधा दी एडिटिंग मास्टर क्लास पे हम आ जाते हैं, राइट. अब ये जो एडिटिंग मास्टर क्लास है मैं इसको ओपन करता हूँ. अब यहाँ पे 2 चीज़ें सिमिलर हैं, तीसरी चीज़ आपको डिफरेंट लगेगी. सो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ रॉ कैमरा पे और मैं इधर चला जाता हूँ, सही है. सो हमारा यहाँ पे गोल ये होता है इस SSD का कि हमारे पास सारे का सारा जो डाटा है वो बैकअप हुआ हो एक अच्छी सी SSD में. हम हार्ड ड्राइव में डाटा बैकअप नहीं करते. बाय द वे, बिफोर आई टॉक अबाउट दीज SSDs एंड स्टफ लाइक दैट, लेट मी टॉक अबाउट वाई वी डोंट वर्क ऑन हार्ड ड्राइव्स. 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है. एक होती है हमारे पास SSD, एक होती है हमारे पास हार्ड ड्राइव. हम हार्ड ड्राइव पे काम नहीं करते क्योंकि हार्ड ड्राइव के ऊपर सबसे बड़ा इशू 2 होते हैं. पहला ये होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर मैक्सिमम स्पीड आपको मिलती है 100 MB की बैक एंड फोर्थ, जिसका मतलब ये है आप उस पर तेज़ एडिटिंग नहीं कर सकते. जिसका मतलब ये है कि अगर आपने पुराना फुटेज डाली हुई है तो आपको दोबारा अपने कंप्यूटर पे लानी पड़ेगी वो फुटेज और फिर आप काम कर पाओगे, जो कि वायबल नहीं है. आपको एक डिवाइस चाहिए जिस पे आप डाटा डंप कर रहे हो, लेकिन बाद में उस डाटा को यूज़ करना है तो आप उसको कनेक्ट करके डायरेक्ट यूज़ कर लो, आपको दोबारा कंप्यूटर में ना लाना पड़े. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. और दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास हार्ड ड्राइव होती है ना, उसके अंदर स्पिनिंग डिस्क होती है. कभी आप हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करो ना तो एक डिस्क स्पिन कर रही होती है, आपको आवाज़ आती है. वो जो स्पिनिंग डिस्क है ना, आपकी हार्ड ड्राइव एक बार गिरी, स्पिनिंग डिस्क हल्की सी ख़राब हुई, आपका सारा डाटा गया. SSD की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक सॉलिड स्टेट ड्राइव, आपके पास सेफ्टी ज़्यादा. ये गिरी बच जाएगी. मेरी 3 बार गिरी हुई है SSD, हमारा डाटा आज तक बचा रहा है. अब इसका ये मतलब नहीं है उठा के लोगों के मुंह पे पत्थर की तरह मारते रहो. इसका सिंपली मतलब ये है कि SSD को मोर वाइबल है. और दूसरा इसका सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्ट इसके ऊपर रहते हुए काम कर सकता हूँ. अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई बहुत पुरानी SSD है, अगर आपके पास मॉडर्न SSD है आप इसके ऊपर रहते हुए काम कर सकते हो, सिर्फ डाटा को कनेक्ट करके. नो नीड टू वरी, you're good to go. So this is why we prefer SSDs for active projects. Now let's talk about hard drives. कि आप hard drives किस सिनेरियो में यूज़ करते हो. For an example, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है जिनको आपने दोबारा कभी भी नहीं खोलना, या आपने शायद 2-3 साल में एक बार खोलना होगा. अब वो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके लिए. हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक वीडियोस थी जो आपने एक बार अपलोड की, दोबारा आपने नहीं करनी. वो जो फाइल्स हैं ना, उनको आप रखोगे या रॉ वीडियोस, या उनकी रॉ वीडियोस जो बहुत बड़े साइज़ की हैं, या फिर आपने उनको यूज़ नहीं करना. आप सिर्फ उनको रखोगे हार्ड ड्राइव पे क्योंकि हार्ड ड्राइव सस्ती होती है तो काम आ जाती है. लेकिन अगर आपके पास एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, 5-6 महीने में अगर एक बार भी खोलना है तो उसके लिए आप बाय करोगे SSD. 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ज़िंदगी आसान है. सो ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर SSDs के बीच में. अब हम मूव करते हैं हमारी स्क्रीन पे जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि SSD को हम किस तरह यूज़ करते हैं. ओके, सो ये मेरे पास एक SSD है और हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर चीज़ें हैं. रॉ कैमरा वीडियो हमने सिंप्लीफाई की भी है चीज़ फॉर एनी फ्यूचर एडिटर, सही है. अब यहाँ पे मौज़म और मैं नहीं है, अभी यहाँ पे कोई और फ्यूचर का एडिटर भी है. मिसाल के तौर पे दानियाल कल को एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करता है, दानियाल वीडियो एडिटर एडिटिंग स्कूल का, राइट. दानियाल, हाँ स्लो दानियाल. ओके, सो दानियाल जो है उसको मैंने ये फाइल्स भेजनी है. मैं क्या करूँगा, रॉ कैमरा वीडियो उठाई, सेम वही चीज़, लैंग्वेज,
फोल्डर स्ट्रक्चर्स आर लैंग्वेज। मैं बड़ी स्क्रीन करके ये बात तुम लोगों को मुंह पे फेंकने लगा हूँ। फोल्डर स्ट्रक्चरिंग एंड डाटा मैनेजमेंट इज अ लैंग्वेज इन अ कंपनी एंड योर लैंग्वेज शुड बी सिमिलर अक्रॉस ऑल एडिटर्स। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट। सो हमारी लैंग्वेज इस वक्त सेम है सारों के अंदर, सही है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको नजर आएगी, हमने एसेट्स का फोल्डर डाला हुआ है जो कि वैसे नहीं था। एसेट्स का फोल्डर क्यों डाला हुआ है? इस मास्टर क्लास के अंदर हमने जितने एसेट्स यूज़ किए हैं ना, अब वो लाजमी बात है मैंने एडिटिंग एसेट्स से उठाए हुए एसेट्स हैं, लेकिन एडिटिंग एसेट्स से उठाए हुए एसेट्स अगर मैंने मास्टर क्लास में यूज़ किए थे तो वो अगला एडिटर कैसे निकालेगा? तो इसलिए जो भी हमने एसेट्स यूज़ किए होते हैं हम उनको भी अलग से यहाँ पे डाल देते हैं ताकि वो अगला एडिटर भी उन एसेट्स को देख सके। सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने हर चीज़ यहाँ पे रखी होती है। सो एक चीज़ बस डिफरेंट अभी तक नजर आई है जो कि है यूज्ड एसेट्स। दूसरी चीज़ है फिनिश्ड वीडियोज़। ये तो सिमिलर है जैसे पहले थी हमारे पास, ये चले जाओ यहाँ पे, सारा कुछ हमने वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो अभी तक आपने नहीं देखी बाकियों में, वो है प्रोजेक्ट फाइल। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़र हो और आप आज तक पुरानी प्रोजेक्ट फाइल्स पे काम करते हो तो आप हमारे जो पिछले पीसी के ऊपर था काम उस पर भी आप प्रोजेक्ट फाइल्स देखोगे, लेकिन अगर आप डविंची वाले हो तो आपको सिर्फ इस एक जगह पे नजर आएगी। सो क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि वो नया एडिटर या हमारे पास सारा डाटा कंप्यूटर मेरा टूट जाता है, ये मैं पूरा प्रोजेक्ट एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं ये जो प्रोजेक्ट फाइल थी इसकी, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अपने डविंची से और इसको मैं यहाँ पे रखता होता हूँ .drp फाइल। आप प्रीमियर प्रो फाइल भी रख सकते हो, आप आफ्टर इफेक्ट्स फाइल जो भी रखनी है आपने रख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी पुट फाइल्स ऑन आवर SSDs and that just makes the process seamless. Now one trick that I can give you that will save your life, अगर तो तुम ऑफिस में काम करते हो, ओके ये वो चीज़ है जो मुझसे दानियाल ने पूछी थी। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो और आपको बैक एंड फोर्थ रोज़ जाना होता है, ऑफिस से आना है जाना है, तो जो आपके एसेट्स है ना, अपने एसेट्स को मेक श्योर करो कि आपके जो ऑफिस का कंप्यूटर है उस पर और आपकी जो SSD है दोनों के अंदर आपके एसेट्स जो हैं वो भरे हुए हों, सिमिलर हों। आप कंप्यूटर से कभी भी कॉपी पेस्ट करो तो कंप्यूटर बता देता है ओवरराइट करना है या स्किप करना है एसेट को, राइट। सो आप स्किप का बटन दबा दिया करो, रोज़ अपडेट कर दो, हर 3 दिन बाद अपडेट कर दो, तो आपकी SSD के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर एसेट्स जो होंगे वो सिमिलर पड़े होंगे। उससे ये होगा जब आप रिमोट काम कर रहे हो तो आपको एसेट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा और एसेट ही कनेक्ट करने में मसला होता है, बाकी तो रॉ फाइल्स हम लोग लेके आते जाते ही हैं साथ। This was everything about advanced data management by Editing School. One of the biggest data management classes that I've ever done, and I think the जितने in depth मैं गया हूँ data management में, I'm pretty sure आपको कोई स्कूल एटलीस्ट जो कि इतनी बड़ी फाइल्स पे 2 TB 1 TB की फाइल्स पे काम कर रहे हो आपको इतनी इन डेप्थ जाके नहीं बताएगा until and unless you're talking to filmmaker who's working on some Netflix work and stuff like that. So yeah, that was pretty much it.